હલો, હું રમેશ મિસ્ત્રી અમદાવાદથી આપની સમક્ષ ઉપસ્થિત થઉં છું. આપ સૌ અત્રે ઉપસ્થિત ભાઈઓ અને બહેનો, ઇન્દ્રધનુષના સર્વે મેમ્બર અને આપ સૌને હૃદયપૂર્વક આવકારું છું, આપનું સ્વાગત કરું છું. સૌ પ્રથમ હું આ ભવ્ય પ્રોગ્રામ આયોજિત કરવા બદલ મયંકભાઈનો આભાર માનું છું. એમની સાથે પ્રોગ્રામને લગતા સહકાર અને ભાગ લેતા એવા કલાકાર શ્રી ઉર્વેશભાઈ તથા જાગૃતભાઈ અને સ્ટુડિયોના માલિક શ્રી ચંદ્રેશભાઈ, એમના યોગદાનને પણ બિરદાવું છું. તેમની સરાહના અને આભાર વ્યક્ત કરું છું. ઇન્દ્રધનુષ એક સર્જન કરતા કલાકારોનું ગ્રુપ છે. દરેક અલગ સ્ટ્રીમના સભ્યોથી બનેલું ગ્રુપ છે, જેમાં ડૉક્ટર, એન્જિનિયર, લેખક, ગાયક, આર્કિટેક્ટ, રમતવીર અને દરેક પોતાના સર્જનને લગતી પોસ્ટ કરી ગ્રુપની શોભા વધારવામાં પોતાનું યોગદાન આપે છે. મયંકભાઈ એક ઉમદા ગાયક તેમજ મલ્ટી ટેલેન્ટેડ વ્યક્તિત્વ છે. મારે એમની સાથે અવારનવાર ફોન પર વાતચીત થતી હોય છે અને મેં એક વખત તેમની સમક્ષ પ્રપોઝલ વ્યક્ત કરી કે આપણે કોરોનાના લીધે 2 વર્ષથી મળી શક્યા નથી, તો એક ગેટ ટુગેધર કાર્યક્રમ આયોજિત કરીએ. અને એમને મારી પ્રપોઝલ વધાવી અને એના લીધે આપની સમક્ષ આજે આપની હાજરીમાં આપણે આ શરૂ કરી રહ્યા છીએ. આપ સૌની હાજરી અને ઉત્સાહથી પ્રોત્સાહિત થઈ થોડો વધારે સમય લીધો મેં, એ માફી માગું છું. So good evening, ladies and gentlemen, ઇન્દ્રધનુષના મિત્રો અને આમંત્રિત સર્જનો. I think I will conduct this show in either Hindi and English because this will go live on Facebook on our group, and we have all members worldwide. So let us have a common language of understanding. You know, the last couple of years have been very trying for all of us due to the pandemic of corona, and we lost our personal touch and public relations with mostly all of us. Everybody had gone through some or other personal turmoil and health issues, and we had received a lot of shocks. So we need to get rejuvenated ourselves and get back to the new normal of life. And I think music is a therapy which can be helpful to us to bring back us to the normalcy of the life. In a recent past, we lost very renowned artists from the music industry, and we received a very big cultural shock. So today's program has a different reasons. One is to have a gathering of our members to meet after such a long time, to brush up our shoulders and mind to get back to the new situation of the life, and to get a therapy of a music to move ahead. And to get this, let us remember those departed souls who left for heavenly abode in last 2 years. This cannot be a homage or a tribute to these people, because they are with us with their imprints of body of the work and creativity. So let us remember that this is a memorial for this renowned artist. Like we lost Dr. S.P. Balasubramaniam, Bappi Lahiri, Pandit Shiv Kumar Sharma, Lata ji, and very recently a very young and promising singer, Krishna Kumar Kunnath. Also, this year is a birth centenary of late renowned lyricist of golden era, Hasrat Sahab, Hasrat Jaipuri. So we will
remember him also because he was a person who defined the definition of a love during 50s and 60s. And we will have some Kuch Dil Ne Kaha. So this program will have 3 sessions. First part will have a memory of all these artists. Second will be celebration for Harshat Saab's birth centenary. Third will be Kuch Dil Ne Kaha, where our members will give their performances on their favorite compositions, right? तो ज़्यादा वक्त न लेते हुए आइए चलिए इस सुहानी शाम की महफिल में आप सभी का मैं फिर से इस्तकबाल करता हूँ और चाहता हूँ कि आने वाले 3 घंटे आपको सही मानों में मोटिवेट कर लेंगे और जब आप जाएंगे तो खुशियों से आपका दिल भर गया होगा एंड दैट विल हेल्प ऑल ऑफ अस। कल हम रहे या ना रहे याद आएंगे ये पल। पिछले 2 साल से हम सभी इसी से निकले हैं। हमारे काफ़ी लोग चले गए जिसके मतलब अब तो हम उनको याद करने के सिवाय कुछ कर ही नहीं सकते। लेकिन ये जो महबूब का जो ये अल्फाज जो है जो के ने गाया था 20 साल पहले, इट वॉज अ वेरी फेमस एल्बम ऑफ के। कल हम रहे या ना रहे याद आएंगे वो पल। पता नहीं था उस वक्त कि ये उन्हीं के लिए इतना सच होगा बहुत जल्दी। अ वेरी प्रॉमिसिंग सिंगर died at a very young age and he was coming up with a different genre of a music which the present generation likes it. You know, if you look at the music of our Indian society, particularly film music and the Sugam Sangeet and all that, this last 10 years music has taken a very paradigm shift in the creativity. So let us begin this memory, going down memory lane with Krishna Kumar Kurnath. He started his career as a jingle singer, then he came to Mumbai. Hari introduced him to Leslie Lewis, a famous composer. He sang a lot of popular jingles, but the turning came with the तड़प तड़प के इस दिल को हम दिल दे के सुनम। तो आइए शुरू करते हैं आज की महफिल with his very famous song कल हम रहे या ना रहे, जागृत वैद्य। સોરી મારા સંદીપભાઈનું નામ ભૂલી ગયો હતું, એમને પણ ખાસી મહેનત કરી છે એના માટે, અને જાગૃતભાઈ। जैसे कोई
निशानी हम रहे या ना रहे याद आएंगे पल हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल चल आ मेरे संग चल चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी हम रहे या ना रहे याद आएंगे पल हम रहे या ना रहे याद आएंगे पल थैंक यू यारो दोस्ती बड़ी ही हसीन है ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राजी बेगरज तेरा हो कोई तो हो राजी यारो मोहब्बत ही तो जिंदगी है ये न हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो राज़िदा बेगरज तेरा हो कोई तो दिल भर हो गया तेरी हर एक बुराई पे काटे हो दोस्त गम की हो धूप तो साया बने तेरा वो दोस्त नाचे भी वो तेरी खुशी में
फिर बोलो ये जिंदगी है कोई तो हो रास्ता जिसको तुझसे हो कोई तो दिल भर होगा Very good, Jagrut. What an impressive and energetic start of an evening. Now you can imagine how this 3 hours would be for all of us, right? पंडित शिव कुमार शर्मा, प्रसिद्ध संतूर वादक और जिन्होंने संतूर जैसे एक जम्मू कश्मीर के वाद्य को दुनिया भर में प्रसिद्धि मिलाई. He gave an identity to this very beautiful instrument. फिल्मी गीतों में जब भी प्रेम का एहसास होता है, गाने में या बैकग्राउंड में संतूर का बजना ज़रूरी है और वो क्रेडिट शिव कुमार जी को जाती है. जब ये पहली बार मुंबई आए 55 में, ये क्लासिकल के प्रोग्राम्स तो करते थे पर इन्होंने फिल्मों में कैरियर बनाने के लिए और मुंबई में आए. वी शांताराम की पहली फिल्म थी जनक जनक पायल बाजे, जिन्होंने वसंत देसाई का संगीत था. तो पंडित जी इनके साथ पहली बार जुड़े फिल्मों में. बाद में उन्होंने फिर काफ़ी संगीतकारों से काम भी किया, बरमंदा, ओ.पी. नैयर, शंकर जयकिशन, काफ़ी के साथ. लेकिन उनका झुकाव जो था वो शास्त्रीय वादन और उसी के प्रति ज़्यादा रहा. और उनके तैयार किए हुए काफ़ी जो शिष्य हैं आज वो भूवे नाम बना के अपनी जगह बना के खड़े हैं. पंडित जी के 2 राग बहुत ही प्रिय थे, किरवानी और पहाड़ी, क्योंकि वो पहाड़ी से जम्मू से आते थे तो पहाड़ी फोक और पहाड़ी पे उनकी काफ़ी अच्छी पकड़ भी थी. जब यश चोपड़ा ने उन्हें पहली बार फिल्म में म्यूज़िक देने के लिए बुलाया तो उन्होंने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के साथ अपनी जोड़ी बनाई और उनके काफ़ी फिल्मों में संगीत दिया. बाद में फिर वो अपना जो प्रिय शास्त्रीय वादन था उन्हीं में चले गए. लेकिन हमारी पीढ़ी को याद है, जितने भी मेरी उम्र के हैं या बड़े हैं, अर्ली 60s और 70s तक इंडियन एयरलाइंस की और एयर इंडिया की सभी फ्लाइट में कॉल ऑफ द वैली का म्यूज़िक बजता था जो पंडित जी का होता था. तो आइए पंडित शिव कुमार को याद करते हैं. फिल्म सिलसिला का एक बहुत ही खूबसूरत गाना जो राग पहाड़ी में है, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए. एम्स्टर्डम के ट्यूलिप गार्डन की बहुत ही खूबसूरत वादियों में फिल्माया ये गाना और अमिताभ रेखा पे फिल्माया ये गाना किसको याद नहीं है. लेकिन उस गाने की जो अंतर्ध्वनि थी वो बहुत ही अलग थी. इसे पेश करेंगे चंद्रेश भाई और रीता बहन, रीता जरीवाला जी. थैंक यू. इंद्रधनुष सभी मेंबर को प्रणाम, नमस्कार.
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी खासों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ किसी नसीब बदसिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी बदल दिया तो फासले हुए। मेरा दिल है तेरे पनाहों में। आ छुपा लूं तुझे मैं बाहों में। तेरी तस्वीर है निगाहों में। दूर तक रोशनी है राहों में। कल लगना रोशनी के काफिले में। प्यार के हजार दीप है जले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये दिया है आपकी निगाहों से। फूल भी बदल दिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। वाह वाह, क्या समा बांधा, मौसम बदल गया बिल्कुल। शिव जी जैसे साक्षात्कार वापस आ गए। पंडित उस्ताद जाकिर हुसैन के साथ उन्होंने बहुत शो किए, स्टेज शोज करते थे शिव कुमार, तो जुगलबंदी इनकी ज़्यादा इनसे होती थी। पर पंडित जी खुद अच्छे तबला वादक थे, क्योंकि संतूर जहाँ पे जिसको भी सीखना हो ताल का ज्ञान बहुत ज़रूरी होता है। और ये इनकी एक तबला वादन की एक बहुत अच्छी मिसाल है। फिल्म गाइड में एक गाना था मौसे छल किए जाए, उस गाने में जो तबला बजाया है वो किसी और ने नहीं, पंडित शिव कुमार जी ने बजाया था। बाकी के गाने में पंडित समता प्रसाद जी ने बजाया था। अब आते हैं, चलिए ये ख्वाब तो देख लिए, लेकिन ख्वाब के बाद जादू आता है प्यार में। जादू तेरी नज़र, फिल्म डर का गाना, शाहरुख की वो पहली फिल्म जिसने शाहरुख को शाहरुख बनाया, उसमें डर का योगदान काफ़ी बड़ा है। और
यश जी के साथ शिव हरि का योगदान भी उतना ही बड़ा है। उदित नारायण का गाया हुआ बहुत ही मशहूर और मारूफ गाना यहाँ पे प्रस्तुत करेंगे उर्विश पंड्या। उर्विश। जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, मेरे ख्वाबों की तस्वीर है तू, बेखबर मेरी तकदीर है तू, तू किसी और की हो न जाना, कुछ भी कर जाऊंगा मैं दीवाना, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। फासले और गम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, फासले और गम हो रहे हैं, दूर से पास हम हो रहे हैं, मांग लूंगा तुझे आसमां से, छीन लूंगा तुझे इस जहां से, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण, जादू तेरी नजर, खुशबू तेरा बदन, तू हाँ कर या ना कर, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण, तू है मेरी किरण। Thank you. So wonderful, Urvish. It is said that melody written in film music in late 80s. One of the film which was instrumental for this was
Ashiki, Nadeem Shravan, they dominated the film music in early decade of 90s along with Anand Mili and Jatin Lalit and others. Shravan Rathod, last year he passed away because of COVID. He belonged to a very family of musicians. His father Chatrabhuj Rathod was a very famous Drupad शैली की गायकी के गायक थे. His brothers Vinod Rathod and others, they were very famous singers. Shravan was a very accomplished musician in all respect. Ashiki not only brought back the melody in the films, but he discovered the singers of 90s like Anuradha Podwal, Kumar Sanu, उदित नारायण. लेकिन इस फिल्म के गानों ने हंगामा मचा दिया था. आशिकी के गानों ने हंगामा मचा दिया एंड दैट चेंज द डायनेमिक्स ऑफ फिल्म म्यूजिक. तो आइए सुनते हैं आशिकी का एक बहुत ही लोकप्रिय और खूबसूरत गाना अब तेरे बिन जी लेंगे हम. वंस अगेन चंद्रेश्वर. जहर जिंदगी का पी लेंगे हम. क्या हुआ जो एक दिल टूट गया. क्या हुआ जो एक दिल टूट गया. अब तेरे बिन जी लेंगे हम. जहर जिंदगी का पी लेंगे हम. तेरी आशिकी भी ये क्या रंग लाई. वफा मैंने की तूने की बेवफाई. मेरी भूल थी मैं ये क्या चाहता था. किसी बेवफा से वफा तू जाने क्या बेकरारी. बेदर्द बेमुरव्वत जा संग दिल हसीना. देखी तेरी मोहब्बत अब मैंने जाना तुझको बेरहम. अब तेरे बिन जी लेंगे हम. जहर जिंदगी का पी लेंगे हम.
जन्म तोड़ देता मोहब्बत के वादे, अगर जान जाता मैं तेरे इरादे, किसे मैंने चाहा कहाँ दिल लगाया, मैं नादान था कुछ समझ ही न पाया, मेरे आंसुओं के मोती आंखों से बहता पानी, मेरे टूटे दिल के टुकड़े तेरे प्यार की निशानी, कैसे मैं भूलूंगा तेरे सितम, अब तेरे जी लेंगे हम जहर जिंदगी का, पी लेंगे हम। क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, क्या हुआ जो एक दिल टूट गया, अब तेरे बिन जी लेंगे हम जहर जिंदगी का, पी लेंगे हम, जी लेंगे हम, जी लेंगे हम, जी लेंगे हम, जी लेंगे हम। Thank you. Wow, what a wonderful expression of this very penetrating song. Give him a very big round of applause. I'm sure that all of you are enjoying this evening, right? आगे चलते हैं SP बालासुब्रमण्यम, डॉक्टर SP बालासुब्रमण्यम या SP बालू गारू और SP या बालू, he was known in South India. A very accomplished singer, film composer, film producer, actor, dubbing artist, और क्या नहीं थे. For the knowledge of audience, he was a dubbing artist for all Kamal Haasan film in Telugu and Kannada, because Kamal didn't know the languages. और जब के बालाचंद्र ने इनको एक दूसरे के लिए बुलाया, कमल हासन के लिए ही बुलाया, तब तक कमल हासन SP बालू जो थे वो साउथ इंडिया में तो ही वॉज अ लेजेंडरी सिंगर, लेकिन एक दूसरे के बाद यहाँ हिंदी फिल्मों में उन्होंने अपना नाम बना लिया. Apart from his caliber as a singer and producer, composer and all that, he was a very nice human being. He did a lot of charity work for the musicians with whom he worked. If my information is correct, he was involved in charity work of these musicians during Corona situation, and he did a lot of shows. And because of that, he was infected with corona. और उनकी जान चली गई उसमें. It was very untimely death, though he was 73. But and he had sang around 40,000 songs in different languages, having registered his name into Guinness Book of World Record. तो चलते हैं बालासुब्रमण्यम. पहले कमल हासन की आवाज़ बनते हैं हिंदी फिल्मों में, बाद में वॉइस ऑफ सलमान खान बनते हैं. सलमान और SP बालू, they were just like मुकेश एंड राज कपूर. तो सलमान का ही एक बहुत ही नॉटी सा गाना सुनते हैं. यहाँ पे भी चंद्रेश भाई और बिंदिया जी गाएंगी, जो दोनों कपल है. पत्थर के फूल का बहुत ही खूबसूरत गाना है. कभी तू छलिया लगता है, कभी तू अनाड़ी लगता है. थैंक
थैंक यू इंद्रधनुष, थैंक यू ऑल। यहाँ पे जो आपका लिखा है ना क्रिएटिव कनेक्ट, एक्चुअली बिंदिया है वो इस ड्राइंग की आर्टिस्ट है, लेकिन हम लोगों का यहाँ गानों का प्रोग्राम अक्सर होता रहता है, तो हम सभी के साथ किसी ने भी गाना शुरू कर दिया, क्योंकि हर बार पेंटिंग करना मुमकिन नहीं होता है, तो धीरे धीरे गाने लगी है। तो कुछ भी परफॉर्मेंस में अगर छोटी सी या बड़ी सी गलती हो तो माफ कीजिए। हेलो कभी तू चलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। कभी तू चलिया लगता है, कभी दीवाना लगता है, कभी अनाड़ी लगता है, कभी आवारा लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। कभी तू लूली लगती है, कभी तू चूली लगती है, कभी तू चांदी लगती है, कभी तू भाभी लगती है। कभी तू लूली लगती है, कभी तू चूली लगती है, कभी तू चांदी लगती है, कभी तू भाभी लगती है। मुझे अच्छा समझे ये कुछ भी छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मेरे नाता जोड़ा है। तेरे मेरे बीच में दीवार ना हो कोई, मैं इंतकाम लूंगा दुश्मन हो जो कोई। मेरा ज़माना गठड़ी लगेगी, भड़केंगे तो शोर तो दुनिया चलेगी, दुनिया चलेगी। कभी तू जुगनू लगता है, कभी तू जुगली लगता है, कभी खरगोश लगता है, कभी आजाद लगता है। कभी तू जुगनू लगता है, कभी तू जुगली लगता है, कभी खरगोश लगता है, कभी आजाद लगता है। तू जो अच्छा समझे ये तुझ पे छोड़ा है, तुझसे ये जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। ला 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 ला, ला 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 ला। एक दूसरे के लिए कुर्बानी हम देंगे, हम तो पागल प्रेमी बंधन तोड़ देंगे। नदिया के पार है प्यार की मंजिल। मैंने प्यार किया है, गाएंगे ये दो दिल, गाएंगे ये दो दिल। कभी तू शबनम लगती है, कभी चिंगारी लगती है, कभी तू नागिन लगती है,
कभी तू जोगन लगती है, कभी तू शर्म लगती है, कभी चिंगारी लगती है, कभी तू नागिन लगती है, कभी तू जोगन लगती है। जो अच्छा समझे ये कुछ भी छोड़ा है, तुझसे जीवन भर का मैंने नाता जोड़ा है। Thank you very much. Yeah. Thank you very much. आई थिंक सलमान रवीना की केमिस्ट्री तो अच्छी थी, पर यहाँ चंद्रेश्वर और बिंदिया की केमिस्ट्री और ज़्यादा अच्छी लगी हमें। इस गाने में बहुत सारी फिल्मों के नाम थे। अब जो गाना आ रहा है उसमें भी बहुत सारी फिल्मों के नाम हैं। एक दूसरे के लिए जब लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इनको बुलाया तो पहला गाना जो रिकॉर्ड हुआ वो लता जी का था। उसमें एसपी बालू को सिर्फ हाँ हाँ रुम्बा परवाई ऐसा कुछ वो बोलते हैं, बस दैट वाज द ओनली वर्ड विच ही हैड टू स्पीक। हाँ 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 पुरिया। Though he was a legendary singer, but he was in very much awe of Lata ji, you know, and he was nervous during the first recording. He used to just speak few words like this. So Lata Mangeshkar was very fond of having a tea during the recordings. So she just ordered some tea and breakfast, and she had some pleasantry exchange with Balu, you know, and that's how, as SP Balu says, that she made me very comfortable. और बाद में तो फिर जो गाना अभी हम पेश करने जा रहे हैं वो रिकॉर्ड हुआ, और फिर जो शिवरंजनी में तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन, रेस्ट इज हिस्ट्री। SP Balasubrahmanyam made a name for himself in Hindi film music. मेरे जीवन साथी प्यार किए जा पेश करेंगे TR पटेल साहब। हमारे बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, लेकिन वरिष्ठता के साथ उनमें जो वाइब्रेशंस आप देखोगे, एक्स फैक्टर जो इनका है वो सही में काबिल तारीफ है। ये रिटायर्ड एक्साइज सुपरिटेंडेंट हैं, बिली मोरा से आते हैं। पटेल साहब हमारे साथ काफ़ी म्यूजिकल ग्रुप में हैं, और उनकी एक पहचान ये है कि ये जयकिशन साहब के वास्ता में पड़ोसी रहे हैं। तो एक और हेलो फ्रेंड्स, मैं इन चीज़ें बदौलत में यहाँ स्टेज पे तो आ गया हूँ। तुमने कहा कि बाला का गाना मेरे को यही ले लेंगे, लेकिन अभी दिस माई फर्स्ट अटेम्प्ट ऑन कराओगे तो मुझको भी यार माफ़ करने को गलती हो जाए, क्योंकि मैं ऐसे टाइम था ना, सिर्फ 4 बिस्तर मेरे जीवन साथी जानिया, मेरे जीवन साथी जानिया, जवानी दीवानी जिति पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। खुदा गई ना हरे राम हरे कृष्ण, दिल को है आशिक हूँ बहारूंगा तेरे मेरे सपने, लेकर के सामने मेरे सामने शादी के बाद हमारे तुम्हारे मुन्ना खुटी तीनों मिली सिलसिला की बबला को खेल कर मैं चौड़ी मेरा नाम, हरी मेरा नाम, चौड़ी मेरा नाम, चौड़ी मेरा नाम, राम और श्याम लड़की गीत गाता चल
सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं सत्यं शिवं सुन्दरं तेरे जीवन साथी यही जवानी दीवानी खूबसूरत पड़ोसन सत्यम शिवम सुंदरम I just said, he is a very wide X factor on stage. But inside, he always prove it. S.P. Bala came from a Harikathakar family, and he was a student of engineering. Because of ill health, he had to drop the studies and he decided to make career as a playback singer. He was inspired and influenced by the singing of Rafi Sahab. अब जो गाना हम पेश कर रहे हैं उसमें एसपी बालू की तो फ्लेवर है, साथ में रफ़ी साहब का भी आपको अंडर करंट्स लगेगा। 90s में एक बहुत ही खूबसूरत गाना बनाया था आनंद मिलिंद में, और समीर ने बहुत खूबसूरत उनके अल्फाज लिखे थे। शायद शुक्ला रस के इससे अच्छे अल्फाज नहीं हो सकते। फिल्म थी वंश, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी। चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ अभी, और मैं बुलाऊंगा जिगना के मेरे साथ सपोर्ट करने के लिए। जिगना
रट घुंघराले काले बादल महकी हवाएं उड़ता चल रट घुंघराले काले बादल बाहों में कस लेने दे प्रीत के चुंबन देने दे बाहों में कस लेने दे प्रीत के चुंबन देने दे इन अधूरों से छलक न जाए इन अधूरों से छलक न जाए यौवन रस अंगूरी आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी सुंदरता का बेटा सागर तेरे लिए रूप की कागर ओ सुंदरता का बेटा सागर तेरे लिए रूप की कागर इंद्रधनुष के रंग चुराऊं तेरी सोनी मांग सजाऊं आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी मेरे मन को महकाए मेरे मन को महकाए तेरे मन की कसूरी ओ आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी थैंक यू सो मच बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ की हरकतें मुड़कियाँ और जो नशीलापन था वो हमने देख लिया। अब चलते हैं पप्पी लाहिरी को। आलोकेश लाहिरी जिन्हें हम डिस्को किंग भी कहते हैं। He was inspired by none less than Elvis Presley, and maybe that was the reason he used to wear a lot of gold also. He started playing tabla at the very young age of 4 years, and his parents were very renowned musicians of West Bengal, Aparesh Lahiri and Basuri Lahiri. So during one of the sessions at Calcutta, Lata Mangeshkar saw this very young toddler playing the tabla, around 4 to 5 years. Bappi was hardly 4 to 5 years old. And Lata ji recommended his father to get this boy trained under
Pandit Samta Prasad was a very legendary tabla maestro. And as Bappi Das says in his interviews, he started composing the music in Bangla films around 12 years old. He made very popular the synthesized music in film industry, Hindi film industry. Mithun Chakravarti and Bappi Das, they changed the dynamics of early 80 films. You know, I am a disco dancer to Yaad Aa Raha Hai Tera Pyar. Bappi Das, at around 21, age of 21, he gave his first Hindi film, that was Nanha Shikari. I remember I had gone to see that film. But the song which gave Bappi Das an identity was Bombay se aaya mera dost, dost ko salam karo. लेकिन ये जो with the generations which they influence along both Mithun and Bappi Das, you know, these generations of 80s, you know, Mithun Chakravarti was one of the highest taxpayer in India during early 80s. One of the reasons was music of Bappi Das. You know, whether you like his music or not, Bappi Das was Bappi Das. You know, there was another loss at a very young age of 69. That is not an age to go. तो आइए चलो बप्पी दा को याद करते हैं। याद आ रहा है। Once again जादू वैद्य। याद आ रहा है तेरा प्यार। मैं तो यहाँ जीता रहा सारे गम दिल के भुला के लेके तुम्हें सारी खुशी मैंने यहाँ कुछ भी तो पाया नहीं, सब कुछ पाके मुझको मिली क्या जिंदगी। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार। कहाँ हम कहाँ तुम हुए तुम कहाँ गुम, अभी जा एक बार। ओ याद आ रहा है तेरा प्यार।
रही है ये दुनिया तेरे पिछड़े हो दिल जाने कहाँ सब यहाँ जाने कहाँ रह गए हम तो अकेले आवाज दे किसको यहाँ याद आ रहा है तेरा प्यार कहाँ हम कहाँ तुम कहाँ अभी जा एक बार याद आ रहा है तेरा प्यार वादा रहा साथी मेरे तेरे लिए गाता चला जाऊं तेरा दिल तू मेरी जान जीना मेरा जीना है ये तेरे लिए जिंदगी लुटा दूं मुझे नहीं क्या है खुशी ओ याद आ रहा है तेरा प्यार कहाँ हम कहाँ तुम कहाँ अभी जा एक बार याद आ रहा है तेरा प्यार Let us move further with two more very signature compositions of Babida. One was from his earlier days, Mana Ho Tum Behad Hasin. The second one is his very famous Bengali composition, which he used to sing in all his stage shows. That was an identity of Babida. And guess which is that famous Hindi song which was based on it.
तुमसे खुश हो या हो खफा, तिरछी नजर की अदा, लगते हो क्यों बेजार से, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से, माना तुम बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। तुम दो कदम दो साथ अगर आसान हो जाए सफर, छोड़ो ये दुनिया का डर, तोड़ो न दिल इनकार से, देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से, माना बेहद हंसी, ऐसे बुरे हम भी नहीं। देखो कभी तो प्यार से, डरते हो क्यों इकरार से। Thank you so much. So this was the power of Bapida ji. अब ये गाना है बपीदा का सिग्नेचर गाना था जो हर स्टेज शो में ये गाते थे। गैस कीजिए कौन सा हिंदी गाना इसके ऊपर बना। ये 77 के पिक्चर थी प्रसन्नजीत और विजयता पंडित की अमर सौगी बांग्ला में थी। प्रसन्नजीत मतलब विश्वजीत सन। This original song was sung by Kishore Da. চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। আমি আছি সেই যে তোমার, তুমি আছো সেই আমার।
কাছে রয়েছ তুমি, আরো কাছে তোমাকে যে চাই, তুমি ছাড়া মন আমার যে আর কেউ নাই। আমি কি গো তোমাকে ছেড়ে একা একা ভাবতে পারি, সঙ্গী সঙ্গী আমার আমার সঙ্গী। এ জীবন ঘুরিয়ে যেতে পাবো একটু নতুন জীবন, সেদিন হবে কাকা দুজনারে দুটি মন। এ জীবন ঘুরিয়ে যেদিন পাবো একটু নতুন জীবন, সেদিন হবে কাকা দুজনারে দুটি মন। হৃদয়ে সব কবিতা ঝরে পড়ে ছন্দ তারে, दिल में हो तुम आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं, सजदा करूं पूजा करूं, बोलो कैसे कैसे चाहूं, जानू जाने जाना जानू। Thank you so much. This was sung by Babita with K.S. Chitra, very famous South Indian singer. Thank you. আমি খুব ভালো করে বাংলা জানি, because of that I could sing this song so well. अब आ जाते हैं लता जी पर। लता जी कोई तारुफ के मोहताज तो है नहीं, तो उसके बारे में हम ज़्यादा क्या बात करें, हम उसके लायक भी नहीं हैं। लेकिन लता जी के गाने जब सुनते हैं, वो कोई किसी का भी हो, दिल झूमने लगता है, या कहें आसामिया में दिल होम होम करे। गुलजार साहब, भूपेन हजारिका, लता जी, इससे अच्छी सृजनात्मकता क्या हो सकती है। मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा जीवना को, ये गाएंगे।
किसी को दिखाऊं ओ मोरे चंद्रमा तेरी चांदनी उड़ जलाए तेरी ऊंची डोरी मेरी पंखड़ी दिल होम करे, ये भी एक अजीब दास्तान है। सुनते हैं अजीब दास्तान, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। शंकर जयकिशन दिल अपना और ब्रेक कर रहे अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी ना वो समझ सके न हम अजीब दास्तां है कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी ना वो समझ सके न हम ये रोशनी के साथ क्यों तुम उठा चिराग से ये रोशनी के साथ क्यों तुम उठा चिराग से ये खूब देखती हूँ मैं कि जग पड़ी हूँ ख्वाब से अजीब दास्तां ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म ये मंजिलें हैं कौन सी ना वो
ट्यूट लिखना है. Lataji's collaboration with her Madan Bhaiya, Madan Mohan, gave some very immortal and all-time classic compositions. Ghazals हो या जो भी हो, their collaboration was excellent. रागनंद पे आधारित अभी रचना जो है, तू जहाँ जहाँ चलेगा मेरा साया साथ होगा, मैं बुलाना चाहूँगा भूमिका को इस कार्य को गाने के लिए. भूमिका जो है सुरोहम ग्रुप के साथ जुड़ी हुई है. Thank you so much. Very good expression of this so penetrating number. लता जी की बात करते हैं, उनके गाने सुनते हैं तो ये 3 घंटे भी कम पड़े.